آغاز اہم خبر سے۔ پاکستان میں شوال کا چاند نظر نہیں آیا۔ عید الفطر ہفتے کو منائی جائے گی۔ پاکستان میں شوال کا چاند نظر نہیں آیا۔ پاکستان کے کسی بھی مقام سے ماہ شوال المکرم کا چاند نظر آنے کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی۔ انشاءاللہ یکم شوال المکرم 1444 ہجری 22 اپریل 2023 بروز ہفتہ کو ہوگی اور انشاءاللہ عید الفطر کا دن ہوگا۔ دوسری جانب سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں شوال کا چاند نظر آ گیا۔ کل عید الفطر ہوگی۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں کل عید الفطر منائی جائے گی۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں شوال کا چاند نظر آ گیا۔ کل عید الفطر ہوگی۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں شوال کا چاند نظر آ گیا۔ کل عید الفطر ہوگی۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ عدالت 14 مئی کا فیصلہ واپس نہیں لے گی۔ عدالتی فیصلے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ عدالتی فیصلہ واپس لینا مذاق نہیں ہے۔ بڑی عدالت کے بڑے ریمارکس۔ سپریم کورٹ کا 14 مئی کا فیصلہ نہیں بدلے گا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے فیصلہ سنا دیا۔ کہا ہم نے اپنا 14 مئی کا فیصلہ قائم رکھنا ہے۔ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کی سربراہی میں جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے ملک بھر میں انتخابات ایک ساتھ کرانے کی درخواستوں پر سماعت کی۔ دوران سماعت تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی نے کہا عدالت کے ہر لفظ کا احترام کرتے ہیں۔ ملک نے آئین کے مطابق ہی آگے بڑھنا ہے۔ درخواست گزار کے وکیل شاہ خاور ایڈوکیٹ نے موقف دیا جمہوریت کی مضبوطی کے لیے ضروری ہے الیکشن ایک ہی دن ہو۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے قوم میں اضطراب ہے اس لیے قیادت مسئلہ حل کرے تو سکون ہو جائے گا۔ عدالت حکم دے تو پیچیدگیاں بنتی ہیں۔ سیاسی قائدین افہام و تفہیم سے مسئلہ حل کریں تو برکت ہوگی۔ دوران سماعت مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق، ایاز صادق، پیپلز پارٹی کے قمر زمان قائرہ، طارق بشیر چیمہ، ایم کیو ایم کے صابر حسین قائم خانی اور بلوچستان عوامی پارٹی کے اسرار ترین نے عدالت کا شکریہ ادا کیا اور اپنی گفتگو میں کہا سیاسی کام سیاسی لوگوں کو ہی مکمل کرنے دیا جائے اور الیکشن ایک ہی دن ہونے کے حوالے سے ان کی جماعتیں اتفاق کرتی ہیں۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا سیاسی لڑائیوں میں نقصان عوام کا ہوتا ہے، سب کو اپنے موقف سے ایک قدم پیچھے ہٹنا ہوگا۔ عدالت نے سیاسی جماعتوں کو 4 بجے تک مذاکرات کا وقت دیتے ہوئے سماعت میں وقفہ لیا۔ 4 بجے اٹارنی جنرل پاکستان اور فاروق ایچ نائک کی چیف جسٹس سے ان کے چیمبر میں ملاقات ہوئی جس میں دونوں شخصیات کی جانب سے عید کے بعد تک کی مہلت طلب اور 14 مئی کو انتخابات کروانے کا حکم نامہ واپس لینے کی درخواست کی گئی۔ تاہم عدالت نے 14 مئی کا حکم واپس لینے کی استدعا مسترد کرتے ہوئے کیس کی سماعت 27 اپریل تک ملتوی کر دی۔ میاں عقیل افضل، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد۔ مذاکرات پر اتحادی جماعتوں کو تحفظات ہیں۔ بلاول بھٹو کی نیوز کانفرنس۔ کہا سر پر بندوق رکھ کر مذاکرات کیسے ہوں گے؟ I don't think that I will be able to convince all our coalition partners to agree to any dialogue with a gun to our head. So what is this gun to our head? جو 3-2 کا فیصلہ ہے، جو اقلیتی فیصلہ ہے، جو زبردستی اکثریت ثابت کر کے ہم پہ مسلط کرنے کی کوشش کیا جا رہا ہے، that is the gun to our head. جو آج کل ہمارا عدالت میں ہو رہا ہے، میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ افسوس کی بات ہے۔ اتنا تقسیم ہمارا تاریخ میں نہیں رہا۔ میں آج تک امید رکھتا ہوں کہ ہمارا جو آنریبل چیف جسٹس ہے سیاسی میدان میں جو کوشش ہے اس کے بجائے اور وہ یونٹی قائم کر کے اپنا عہدہ چھوڑے گا۔ جو 90 دن کے آر میں زبردستی پنجاب کا الیکشنز پہلے کروانا کا سازش ہے، ہم کل بھی 1 یونٹ کے خلاف تھے اور ہم آج بھی 1 یونٹ کے خلاف ہیں۔ ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس مسائل کا حل نہیں نکالتے ہیں تو ہمارا جمہوریت کو، ہمارا وفاق کو سنگین خطرہ ہے۔ جس بینچ پر ہم نے عدم اعتماد کیا اس کے سامنے پیش کیوں ہو؟ مولانا فضل الرحمان کی نیوز کانفرنس۔ کہا کہ
کہ जिस शख्स को अब तक नाअहल हो जाना चाहिए था, अदालत उसे सियासत का महवर बना रही है। अदालत अपनी पोजीशन वाज़ेह करे, क्या वो अदालत है या वो पंचायत। जिस शख्स को अब तक नाअहल हो जाना चाहिए था, जिसको पाकिस्तान की सियासत के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए था, हमारी सुप्रीम कोर्ट उसको पाकिस्तानी सियासत का महवर बना रही है। जो शख्स यहाँ तक कहता है कि अगर मेरी सादा अक्सरियत आई तब भी मैं असम्बली तोड़ूंगा, दोबारा इलेक्शन करवाऊंगा, इस तरह की बातें करना और फिर इससे हमें कहना कि आप उनसे बात करें, ये तो पूरी सियासत की तौहीन है, ये तो पार्लियामेंट की तौहीन है। जनाब चीफ जस्टिस साहब और आपके 2 रुफका या 3 रुफका, मैं बराह रास्त आपसे कहना चाहता हूँ कि आप इंतहाई मुअज़्ज़ज़ कुर्सी पर बैठकर हमारी तौहीन कर रहे हैं। किस शख्स से हम मुज़ाकरात करें? अगर वो वाकई इलेक्शन चाहता तो उसको कौमी असम्बली क्यों नहीं तोड़ रहा था? उसको पंजाब और केपी की हुकूमत क्यों नहीं तोड़ रहा था? उसने मुल्क की सियासत में एक मुश्किल पैदा करने की गरज से ये हरकतें की हैं, अगर आमदन की है, वरना फिर हमाकत है। अदलिया आइन की तशरीह कर सकती है, दोबारा लिख नहीं सकती। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आईन पाकिस्तान की मोबाइल ऐप के इजरा की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। मरकजी सदर पीटीआई चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि नून लीग का इलेक्शन से फरार का मतलब है कि उन्हें अपनी शिकस्त साफ नजर आ रही है। चौधरी परवेज इलाही से साबिक वजीर चौधरी वजाहत हुसैन, मोहम्मद अकरम, चौधरी गुलजार, आसिम चीमा और चौधरी अकरम ने मुलाकात की। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, मुस्लिम लीग नून मुल्क में गैर जमहूरी अमल को परवान चढ़ाना चाहती है, हम उसे साहसी शहीद नहीं बनने देंगे। इमरान खान के बगैर पाकिस्तान की सियासत नामुकम्मल है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर पीडीएम मुज़ाकरात के लिए तैयार, मगर इलेक्शन करवाने के लिए तैयार नहीं। अवाम की फलाह व बहबूद के लिए सबको मिलकर सेफ रास्ता निकालना होगा। वेलकम बैक। बात करेंगे पाकिस्तान में शवाल का चांद नजर नहीं आया और शहरी एक और दिन मिलने का भरपूर फायदा उठाने के लिए मार्केट्स पहुंच चुके हैं। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमें रिपोर्ट करेंगे कि बाजारों में गहमा गहमी कैसी है और लोगों की ईद की तैयारियां कैसी जा रही हैं। कराची से रिपोर्ट करेंगे आयशा खान, लाहौर से सूरत हाल जानेंगे साकिब सलीम भट्ट से, पेशावर से हमारे साथ होंगे एहतिशाम बशीर, कोयटा से होंगे मोहम्मद अकरम और रावलपिंडी की सूरत हाल हम जानेंगे जमील मिर्जा से। आयशा, सबसे पहले कराची का हम रुख करेंगे और आपकी जानिब आएंगे। जानना ये चाहेंगे कि कराची के बाजारों में इस वक्त क्या गहमा गहमी है। जी देखिए, ईद छोटी हो या बड़ी हो, खवातीन की शॉपिंग तो आखिरी वक्त तक मुकम्मल नहीं होती। इस वक्त भी शहर की जो मार्केट्स हैं उसमें रौनकें दोबारा बहाल हो गई हैं इफ्तार के बाद। यहाँ इस वक्त मैं तारिक रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ खवातीन की बड़ी तादाद शॉपिंग में मसरूफ़ है और शॉपिंग में जो है खवातीन ज़्यादातर रेडी टू वेयर को तरजीह दे रही हैं, क्योंकि सिलसिला मलबूसात में वैराइटीज़ भी लग गई हैं, क्योंकि आखिरी कुछ 2 दिन हैं तो खवातीन चाह रही हैं कि हम बस सिलाई ही ले लें। और उसके अलावा खवातीन का कहना है कि दूसरे मरहले में जो हम दाखिल हुए हैं वो है मैचिंग की चीज़ें मिलना, क्योंकि जो दुपट्टे मैचिंग के हैं या चूड़ियाँ हैं, ज्वेलरी है, जूते हैं, वो मैचिंग की मिलना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। तो खवातीन का ये कहना है कि बस उसी में जो है हम मसरूफ़ हैं। और एक दूसरी जानिब जो है वो खवातीन की एक बड़ी तादाद पार्लर्स का रुख कर रही है। वहाँ पर जो नौजवान लड़कियाँ हैं ने तो पार्लर का रुख कर लिया है और बाजारों में भी गहमा गहमी है। आयशा कराची से अपडेट कर रही थी, लाहौर का रुख करते हैं जहां पर साकिब सलीम भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जान लेते हैं कि वो इस वक्त किस बाजार पे मौजूद हैं और क्या गहमा गहमी देख रहे हैं, क्या कहते हैं शहरी, कहां तक पहुंचे उनकी तैयारियां। प्यारे प्यारे कलर भाई के पास जी बिल्कुल नबीला, जो है लाहौर के अंदर जो है ईद उल फितर की तैयारियां ज़ोरों पर जा रही हैं। इस टाइम हम लिबर्टी मार्केट में मौजूद हैं, यहाँ पर फैमिलीज़ की बहुत बड़ी तादाद और स्पेशली खवातीन बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर जो है वो मौजूद है। और यहाँ पर जितनी भी शॉप्स हैं उन तमाम शॉप्स के अंदर खवातीन और कम सिन लड़कियाँ जो है वो शॉपिंग में मसरूफ़ हैं। वो जूतों की दुकानें हैं, वो कपड़ों की दुकानें हैं और जो सबसे ज़्यादा रश हमें देखने को यहाँ पर मिल रहा है वो मेहंदी के स्टॉल्स पे है। खवातीन यहाँ पर जो है वो बाड़ियों के टोकन जो है उनको मिल रहे हैं, उनके बाद जाकर वो मुख्तलिफ स्टॉल्स के ऊपर जो है वो मेहंदी जो है बाजुओं हाथों पे और बाजुओं पे जो है वो मेहंदी जो है वो लगवाई जा रही है। कम सिन बच्चियाँ जो है वो वहाँ पे लगवा रही हैं। चूड़ी के स्टॉल देखें तो वहाँ पर छोटी छोटी बच्चियाँ और ख़वातीन जो है वहाँ पर मौजूद हैं, वो चूड़ियाँ खरीदी। हम ओवरऑल बात करें तो इस दफ़ा जो कीमतों में इजाफे की वजह से सोने के बजाय जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है उस पर खासा जो है गैर मामूली रश जो है वो दिखने में आ रहा है। लाहौर में मामूली रश दिखने को मिल रहा है। पिंडी का रुख करेंगे जहां पर बैंक रोड सदर पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे जमील मिर्जा। जमील, यहाँ की सूरत हाल क्या है, क्या गहमा गहमी है और बच्चों की तैयारियों के बारे में क्या कहेंगे? जी मैं
वक्त रावलपिंडी के बैंक रोड पे और यहाँ पे जो छोटे बड़े कारोबारी मराकज हैं उनमें रश है, खवातीन हैं, बच्चे हैं, लोग ज्वेलरी के लिए खरीदारी के लिए भी आए हुए हैं, कपड़े तला रहे हैं, रेडीमेड गारमेंट्स ले रहे हैं और साथ जो है वो मेहंदी के स्टॉल्स पे भी बड़ा रश है। तो मैं आपको बताता चलूं कि जो आज का दिन है वो भी चांद रात है, लेकिन एक चांद रात कल भी होनी है क्योंकि ईद जो है वह परसों है। तो टेलर शॉप के ऊपर जो रश था, लोगों को कपड़े नहीं मिल रहे थे, तो उन्होंने भी सुख का सांस लिया, उनको भी एक दिन और मिल गया। अब कल वो लोगों को उनके मनपसंद पहले के ऑर्डर हुए थे वो दे सकेंगे। बैंक रोड पे अगर मैं इस वक्त आपको बताऊं तो बैंक बिल्कुल रोड पे कमोबेश पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो शहरी हैं वो भरपूर तरीके से ईद की तैयारियां कर रहे हैं। तमाम नुमाइंदगान का शुक्रिया, मुख्तलिफ शहरों की सूरत हाल आपने हम तक पहुंचाई।